My qualification, BS honors in information technology. Then M English, linguistics and literature. After this, MPhil, teaching English. As a second language. Okay, this degree English, I'm English Linguistics and Literature, NUMAL, National University of Modern Languages. And this is from Beacon House National University, BNU Lahore, right? So one thing I want to mention here, that is research work. Research work actually majors are language testing and evaluation. I did research on IELTS academic reading module. Okay, I've been teaching to IELTS since last teaching experience. IELTS teaching experience is basically more or less 10 years. Basically, I'm a student. I'm not saying that I'm professional. Still, I'm there. There's so much. There's so many things to learn on, and things are going on. There is no absolute knowledge. There is no absolute knowledge. Absolute mean ultimate, right? So absolute knowledge. There is no absolute power except Allah. अल्लाह ताला की ज़ात ही है जिनके पास ताकत भी इल्म भी है. हम लोग खुद से students हैं. Every day I learn something new, and I remain open to learn. I mean, more and more whatever I learn in different spheres of education. So I remain open myself. Okay, ji. So this is something about my qualification and experience. Acha ji. Now let's talk about IELTS. What is IELTS, by the way? 1996. Before 1996, it was ELTS, English Language Testing Services. And after this, it became IELTS, International English Language Testing System. IELTS बना कैसे, ये पहले क्या चीज थी, थोड़ा सा हम टू द पॉइंट डिस्कशन करेंगे. ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, बिकॉज आवर पर्पस इज डिफरेंट. दैट इज टू स्कोर maximum, that is 9 or 8.5 in each module. This is what I want, that every one of my students, they have to score this band. But let me tell you, basically it is an instrument. So what is instrument? It scales your abilities in English language. Where do you stand at the moment? So we have two different types of IELTS. One is academic. This is for study purposes. And second is GT. This is for general training. It stands for general training. And it is for work visa
or immigration, right? So we have two different types, academic IELTS and GT IELTS. Now let's talk about modes of testing. You have C, computer delivered IELTS, and second is paper-based IELTS. Computer delivered is something different, and computer-based IELTS is something different. It is not computer-based IELTS, computer-based assessment. There are so many other assessments. For example, when we talk about PT academics, so that is computer-based assessment. IELTS is not computer-based assessment, though it is delivered by the computer. What's the basic, what is the, fundamental difference between computer delivered assessment and computer-based assessment? Most computer-based assessments are based on artificial intelligence, right? Uh, so these are the tools where computer, basically machines, assesses your abilities. So machines, when machine assesses your abilities, so this is called computer based. There is no human intervention inside the assessment. But when we talk about IELTS, humans, teachers, they and the examiners, they mark this assessment. So this is the basic difference. कंप्यूटर में ये होता है कि अगर टेस्ट आइटम्स होते हैं, टेस्ट आइटम एक क्वेश्चन को कहते हैं, तो जो टेस्ट आइटम्स हैं वो डिफिकल्ट होते जाते हैं अगर आप सारे आसान क्वेश्चंस के आंसर देते जाएं. एक क्वेश्चन का आंसर दिया, नेक्स्ट वुड बी मोर डिफिकल्ट एंड देन मोर डिफिकल्ट. So I'm not saying difficult, it is more challenging, in the right word is more challenging. Computer delivered में ऐसा नहीं होता, ना machines check करती हैं. Yes, reading and listening to an extent we can say that machines mark, but writing और speaking तो बिल्कुल भी machines नहीं करती. कुछ portion machines कर लेती हैं, लेकिन कुछ पोर्शन एंड में जो मार्क्स वगैरह हैं वो एग्जामिनर नहीं देने होते. तो व्हाट इज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट एंड पेपर बेस्ड टेस्ट? अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, देन यू मस्ट गो फॉर कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट. अगर आपके पास टाइम शॉर्टेज है कि आपने, फॉर एग्जांपल, यू नीड रिजल्ट in urgency, then you have to take this assessment computer delivered, because after 5 days, 3 to 5 days, you will get your result sheet. अगर आप पेपर बेस देते हैं तो आफ्टर 13 days you will get your result sheet. सेकंड ये कि रीडिंग के अंदर ये कंप्यूटर डिलीवर्ड कंफर्टेबल होता है. समटाइम्स पीपल दे यूज्ड टू से दैट इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू रीड something on the screen, but this is not the case. कंप्यूटर डिलीवर पे भी आराम से रीडिंग हो जाती है. और लिसनिंग की भी अगर आपकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हो, मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स दे स्कोर्ड 8.5 or 9 in listening module. So listening, reading, all these modules are easier. कंप्यूटर डिलीवर्ड असेसमेंट एयू लाहौर में भी हो रही है. इसके अलावा एक सेंटर है आईडीपी. चलें जी, ये भी बात करते हैं. IELTS में there are 3 stakeholders. One is called IDP. Second is the British Council. And the fourth one is Cambridge University. This test is designed by the Cambridge University. Cambridge University, Cambridge English Language Syndicate, ये नाम है जी जो इसको डिजाइन करते हैं. ब्रिटिश काउंसिल, आईडीपी एग्जीक्यूट करते हैं. इन तीनों बॉडीज का आपस में शेयर है IELTS के अंदर. तो जो रिसर्च वर्क है, जो टेस्ट डिजाइन है, जो बाकी सारा काम होता है, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश काउंसिल इसको एग्जीक्यूट करती है अक्रॉस द ग्लोब. और आईडीपी के बिहाफ पे, आईडीपी खुद भी, और आईडीपी के बिहाफ पे AEO, ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑफिस, ये टेस्ट को लेता है. देयर आर 6 मेन रीजन्स, 6 बड़े रीजन्स हैं. हर रीजन में डिफरेंट कंट्रीज आती हैं. पाकिस्तान, इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, इसमें एक ही टेस्ट आता है. जो क्वेश्चन अगर आज की डेट में पेपर बेस आप IELTS की बात करें, तो अगर आपको जो 7 दिसंबर को जो असेसमेंट आएगी,
वो इन तमाम ममालिक में रीडिंग भी सेम होगी, लिसनिंग भी सेम होगी, स्पीकिंग भी होगी। इसकी भी मल्टीपल रीजंस हैं, इसमें डिफरेंट वैलिडिटीज आ जाती हैं, टेस्ट डिज़ाइन की कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो चलें बहरहाल हम इस पे ये डिस्कस करते हैं। अब आते हैं जी काम के ऊपर कि व्हाट इज द बैंड रिक्वायरमेंट्स। अच्छा जी, अगर तो आपकी एजुकेशन है इंटरमीडिएट एफ एस सी, ठीक है जी, देन यू नीड 6 ओवरऑल, 6 in each module. So how many modules are there? We have 4 different modules: reading, writing, listening and speaking. आपको रीडिंग में, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में किसी मॉड्यूल में भी 6 से कम बैंड ना है। टोटल बैंड्स कितने होते हैं? 9 बैंड्स होते हैं। इसको यूं समझें कि जैसे 90% स्कोर्स में से आपको 60% स्कोर लेना है, 70% लेना है, 80% लेना है या 90% लेना है। आगे फर्दर डिस्कशन होगी बैंड्स की डिटेल में कि कैसे आपको स्कोर्स वगैरह दिए जाते हैं, but generally speaking you need to understand that out of 9 you have to score something. So if you will get 6 in each module, 6 band in each module, then you will get admission in most of the universities. एक चीज बताता चलूं, this is not for the you can say secondary education or elementary education. IELTS सिर्फ और सिर्फ उस स्टूडेंट ने करना है जिसने एडवांस्ड एजुकेशन हासिल करनी है या जिन्होंने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है। तो जो छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको आइल्स करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको डिजाइन भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव में किया जाता है। एफएससी आपने की तो आप यूनिवर्सिटी जाते हैं आगे फर्दर एजुकेशन के लिए। इवन आप इफ यू आफ्टर ग्रेजुएशन यू गो यूनिवर्सिटी, और फॉर एग्जांपल इफ यू आर सीकिंग एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स उसमें, तो देन अगेन यू नीड टू गेट एडवांस एजुकेशन। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए आइल्स होता है। पाकिस्तान में भी अगर कोई बंदा बाहर से आते हैं, जैसे इथोपिया से, अफ्रीका से, सऊदी अरब से, मिस्र से, कोई बंदा पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में आना चाहता है, जैसे यू हैव फास्ट, यू हैव लम्स, यू हैव बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, जीआई की। So in these universities, what you need to do, simply you need to take IELTS test. बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में आपका 6.56 बैंड होगा तो फिर आपको एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो आइल्स आपको देना पड़ता है। इसी तरीके से इफ़ यू वांट टू गो टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बाकी यूएसए में भी आइल्स जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। इसकी क्रेडिबिलिटी बाकी तमाम तर टेस्ट जितनी भी असेसमेंट्स हैं उनसे, उनमें सबसे ज़्यादा है। इसको ज़्यादा रिलायबल कंसीडर किया जाता है। वीज़ा लगने में आसानी होती है। अगर आप स्वीडन की किसी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, किसी अच्छी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो वेल क्लेम्ड यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आइल्स करना पड़ेगा। जर्मनी में जाना चाह रहे हैं तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज के लिए आइल्स करना पड़ेगा। इन सम केसेस दे डोंट डिमांड फॉर आइल्स। यूके में जाना चाहते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, इस तरह की बड़ी यूनिवर्सिटीज में यू नीड टू टेक आइल्स। हल्की यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज में जाना चाहते हैं तो बाज़ ममालिक में आइल्स एग्जेम्प्ट कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब कनाडा में आप पिछले कोविड के दिनों में वो कहते हैं ड्यूलिंगो एक टेस्ट है वो दे दें जी ड्यूलिंगो। उसके बाद स्कोर्स आगे जी। उसके बाद जब आप वीज़ा लेने जाएंगे तो आपको एम्बेसी वीज़ा नहीं इशू करेगी, बिकॉज दे फील रिलक्टेंट एंड दे थिंक दैट पाकिस्तानियों को जी हमने आइल्स के बगैर नहीं देना। और भी लोग हैं जिन्हें आइल्स के बगैर, मतलब आइल्स इज अ काइंड ऑफ फिल्टर दे डिसाइफर स्टूडेंट्स कि जी अगर आइल्स किया हुआ है, इसमें अच्छे स्कोर्स हैं, तो फिर हम आपको वीज़ा देंगे वरना नहीं देंगे। दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, अच्छा चले मैं इमिग्रेशन पे भी आता हूँ। एफएससी में 6 बैंड, अगर आगे वैसे इन मोस्ट केसेस इफ यू विल गेट 6.5 ओवरऑल एंड 6 इन ईच, देन यू विल गेट वीजाज, एकेडमिक वीजाज आपको मिल जाते हैं। डॉक्टर्स को चाहिए 7.5 ओवरऑल एंड 7 इन ईच मॉड्यूल, ठीक है ना। उनका एक टेस्ट होता है, यूके में प्लैब के लिए जाते हैं, उनमें ये बैंड रिक्वायरमेंट है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 7 ईच रिक्वायरमेंट है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 7 ईच रिक्वायरमेंट है। इससे कम पे आपको अलाउ नहीं करेंगे। और एक बात बताऊं, 7 ईच को इतने अच्छे बैंड्स नहीं है।
अल्लाह ना करे किसी के 7, मतलब किसी अच्छे मतलब क्वालिफाइड बंदे के 7 ईच आ जाएं, ये ना समझें कि आपने बहुत कोई बड़ी अचीवमेंट कर ली है, बट ठीक है, इट्स ऑल राइट। आपने आम जो हल्के लोग हैं, बिलो एवरेज हैं, उनसे अच्छे हैं, लेकिन आप एवरेज स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप ऊपर जाते हैं 7.5, 8, 9, 8.5 अच्छे बैंड्स हैं, 8.5 और 9 बस। और 8 बैंड चलें, कंसीडर कर लेते हैं उसको भी अच्छे में, लेकिन जो अच्छे जिसे कहते हैं ना कि वेल रिप्यूटेड, 8.5 और 9 बैंड। ठीक है, इसको जहन में रखिएगा। अगर बैंड्स नहीं आ रहे तो हमारी मिस्टेक्स हैं, कोई ना कोई इश्यूज हैं, तो इस वजह से स्कोर नहीं आ रहे। अच्छा जी, ये थी एकेडमिक। अब आपको चाहिए इमिग्रेशन के लिए, सिटीजनशिप के लिए, नीड 8777 बैंड और कैनेडियन इमिग्रेशन। और इसमें आपको लेना पड़ेगा GT IELTS। So what's the difference between GT IELTS? रीडिंग डिफरेंट होती है और टास्क 1 राइटिंग के अंदर डिफरेंट होता है। लिसनिंग सेम, स्पीकिंग सेम, देयर इजंट एनी डिफरेंट। ऐसे भी जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है उसमें एक ऐसे लिखना होता है, GT के टेस्ट में भी और एकेडमिक आइल्स में भी लिखना होता है। लेकिन GT में आपको टास्क 1 में लेटर लिखना होता है और एकेडमिक में आपको एक रिपोर्ट लिखनी होती है। तो 8777 बैंड फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन, दिस इज कॉल्ड CLB 9। अगर आपकी एज 36 तक है तो मोस्ट स्टूडेंट्स को देनी है 8777 बैंड, अभी तो ये चाहिए। और अगर आपकी एज बढ़ जाती है 40, 42, 3 हो जाती है, तो फिर यू नीड CLB 10 प्रोविंशियल नॉमिनीज के लिए, नहीं कैपिटल के लिए। टोरंटो में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो फिर यू नीड 8777 बैंड। अच्छा, कुछ केसेस में फिर आपको चाहिए होता है 6.5 ओवरऑल, 6.5 ईच। ये प्रोविंशियल कैटेगरी के अंदर इफ यू स्कोर 6.5 ईच तो आपका केस आगे लग जाता है और आप स्कोर करना शुरू कर दे, मतलब आप हो जाते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए। अच्छा जी, एक स्कोर आपको चाहिए CLB 10 विच इज कॉल्ड 8.5 इन लिसनिंग, 8.5 इन स्पीकिंग, सॉरी 8.5 इन लिसनिंग, और रीडिंग में यू नीड 7.5, राइटिंग में यू नीड 7.5, लिसनिंग में और आई थिंक यस रीडिंग के अंदर, लिसनिंग और रीडिंग में यू नीड 8.5 और राइटिंग और स्पीकिंग में यू नीड 7.5, 7.5। दिस इज कॉल्ड CLB 10। ये मैक्सिमम स्कोर है जो कि आप ले सकते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए 7 ईच, 8 ईच। अगर आपके पास कोई वर्क वीजा है तो देन यू नीड 6.5 ईच और 7 ईच, समथिंग लाइक दैट। ठीक है जी। अच्छा जी, ये बैंड रिक्वायर्ड है। So this is the requirement of most of the people, most of the students. कई स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने 8 बैंड्स लिए हुए, इवन अगर उन्हें एकेडमिक स्कोर चाहिए तब भी 8 बैंड्स लिए। जितने ज्यादा बैंड्स लेंगे आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी। एम्बेसी वाले आपको स्कोर वीजा ग्रांट करने में रिलक्टेंट नहीं होंगे। वो देखेंगे कि जी आपके स्कोर्स बहुत अच्छे हैं, आप एकेडमिकली साउंड है, दे वेलकम यू इन देयर कंट्री। अदरवाइज दूसरे केस में ये होता है कि दे स्क्रूटनाइज यू, डिफरेंट किस्म के चेक्स लगे होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे वो चाहते हैं कि आप कहीं वहां पे जाके स्किप ना हो जाए, क्योंकि कनाडा की एक पॉलिसी है कि वंस यू गो देयर सो लीगली दे विल नॉट डिपोर्ट यू। आप वहां पे जाए, जो वापस आना ही ना चाह रहे हो, वीजा आपका खत्म हो गया, तो वो क्योंकि वेलफेयर स्टेट है वो आपको फिरने देगी वहां पे। कहेंगे ठीक है कोई नहीं, एक दफा वापस आ जाएं तो फिर आपको दोबारा नहीं बुलाएंगे। इसी तरह वो जब बुलाते हैं तो बड़ा ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे आ गया उसके बाद क्या मैंने वापस ही नहीं जाना, तो फिर ये बंदा जो सा इधर ही रह जाएगा कनाडा के अंदर। लेकिन मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, बीइंग अ टीचर, एज भी मेरी अब हो गई है 40 अब होने वाली। फेयर काम करें, कुछ नहीं होता, पाकिस्तान वापस आ जाएं। आपकी डिग्रीज, आपके सर्टिफिकेट्स, आपकी सारी चीजें फेयर होनी चाहिए, कि 2 नंबरी ना करें। मतलब कुछ भी नहीं होता, ये हमारे वहम होते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए स्ट्रगल करें, कोशिश करें,
लेकिन अगर आप देखें कि इसमें आपको झूठे सर्टिफिकेट्स बनाने पड़ रहे हैं या कुछ ऐसा करना पड़ रहा है, छोड़ दें उस चीज़ को, उसमें अल्लाह ताला ने बरकत नहीं रखी, कुछ और कर लें। ऐसे भी लोग हैं जो कि बिल्कुल आइल्स में उनके बैंड्स नहीं है, वो सारी दुनिया में घूमते फिरते हैं, जहाँ मर्जी चले जाएं वो जा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें छोड़ दें उसे अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर। हाँ, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं और आइल्स ओरिजिनल है तो फिर डेफिनेटली यू मस्ट ट्राई फॉर इट, और इसमें कोई मजायका नहीं अगर आपके पास ड्यूअल नेशनलिटी है। लेकिन ये कि दो नंबरी ना करें, सच के ऊपर चीज़ें रखें और उसको आगे लेके चलें। अच्छा जी, इमिग्रेशन होगी। इसके आगे फर्दर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस आपको म्यूज़िक फेस करना पड़ता है अगर आप कोई उल्टी सीधी हरकतें करें। कभी डिस्कस करेंगे कि आइल्स में अगर आप दो नंबरी करें तो क्या नुकसान है। उसके बाद ये कि आपका और अगर चीज़ें फेक और डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसका क्या नुकसान है, वो कभी करेंगे। अच्छा जी, हाउ टू प्लान आइल्स प्रिपरेशन। स्कोरिंग 9 आउट ऑफ 9 इज रियलिस्टिक। प्लानिंग से पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, स्कोरिंग 9 आउट ऑफ 9 इज रियलिस्टिक। सबसे पहले तो ये है कि प्रोबेबिलिटी एक वर्ड होती है कि प्रोबेबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी नहीं किसी चीज की। प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर एक बंदे ने भी दुनिया में 9 आउट ऑफ 9 स्कोर कर लिए हैं तो यू कैन बी द नेक्स्ट पर्सन। और दो मॉड्यूल्स में तो हमारे पास 9 आउट ऑफ 9 के काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। रीडिंग में 9 आउट ऑफ 9, लिसनिंग में दे स्कोर 9 आउट ऑफ 9। इसमें कोई सच प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन ऑल्सो स्कोर 9 आउट ऑफ 9। 8.5 बाकी मॉड्यूल्स में 8.5 वगैरह, मतलब 9 9 की मैं बात करूं तो ये दो मॉड्यूल्स हैं, और 8.5 बाकी मॉड्यूल्स में आ जाते हैं। स्पीकिंग इन राइटिंग 8 बैंड, 8.5 बैंड, 7.5 बैंड स्टूडेंट्स दे गेट, दो दे आर लेस इन नंबर, थोड़े से लिमिटेड होते हैं, बट दे कैन स्कोर। अच्छा जी, तो एक किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तीन चार किताबें हैं जिनसे मैं कुछ मुझे इंस्पिरेशंस मिली है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और थिंक एंड ग्रो रिच, एटॉमिक हैबिट्स। अच्छा, जिंदगी में भी ये कि व्हाट आई वांट कि ट्राई टू प्लान बिग, बड़े प्लान्स करें, अपनी वुसअत को भी ज़हन में रखें। लेकिन ये अल्लाह ताला की ज़ात है ना, वो तो जिसे कहते हैं ना, जो भी बिलीवर्स हैं वो मानते हैं कि वो अल्लाह ताला ने पूरी यूनिवर्स की तख्लीक की है। तो जिसने नेपच्यून को, प्लूटो को, मरकरी को और बाकी चीज़ों को बनाया है, उसके लिए छोटी छोटी जो उनसी आपकी डिज़ायर्स हैं ये मानी नहीं रखती। मतलब थोड़ा ना मांगे, गाड़ी मांगे तो बहुत बड़ी गाड़ी मांगे, घर मांगे तो बहुत बड़ा मांगे, ठीक है ना। बाहर जाना है, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी को देखें, MIT यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, नीचे क्यों आप अपने आप को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक दफ़ा तो कोशिश करें, अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें, देखें, 7 ईच के लिए ट्राई करें एक दफ़ा, ठीक है। तो बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो आपके डिसिप्लिन की है, मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है, मैं आपको बताता हूँ। प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्यूटर साइंसेज में मास्टर्स BS ऑनर्स किया था IIT में। उसके बाद मैंने नमल से, नेशनल यूनिवर्सिटी मॉडर्न लैंग्वेजेस से, MA इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर किया। फिर मैंने बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से MPhil किया। तीनों यूनिवर्सिटीज ठीक थी, अच्छे प्रोफेसर थे, पढ़ाने वाले लोग थे, लेकिन जो मुझे एक्सपोजर मिला बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर, वो बाकी दो यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं मिल सका। तो बात यह है कि आप टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं, तो फिर कम के लिए क्यों करें। इसी तरीके से आप स्कोर लेना चाह रहे हैं तो आइल्स में मैक्सिमम स्कोर गेन करने की कोशिश तो करें एक दफ़ा, और माइंड में रखें कि अगर X ने, Y ने, Z ने, इन सारे लोगों ने ये स्कोर गेन किया हुआ है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो एक दफ़ा कोशिश करें, उसके बाद रियलिस्टिक हो। मोटिवेशन, मैं बेसिकली मोटिवेशन के साथ साथ ना रियलिज्म, जो रियलिस्टिक अप्रोच है, थोड़ा सा स्केप्टिकल भी हूँ। देखें कि हाउ दिस इज पॉसिबल, व्हाट आर द बैंड डिस्क्रिप्टर्स,
फेलियर्स क्यों होते हैं, यू नीड टू बी मेटिकुलस, यू नीड टू बी थॉरो, यू नीड टू सी ऑल डिटेल्स ऑफ दीज काइंड ऑफ बैंड डिस्क्रिप्टर्स में। फिर प्लानिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो सक्सेस होती है दैट इज टाइम बाउंड। ये नहीं कि आप शुरू हुए हैं तो 2030 के अंदर आपके 9 ईच आ गए, नहीं नहीं नहीं, 2 महीने मिले ने, ये 3 माह मिले ने, 1.5 माह मिले ने, और इसको आपने वो करना है। एक दफा कोशिश करें, उसके बाद इफ वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट कहते हैं तो फिर ये कि आपके 7.5 आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपके जो डिजायर बैंड होंगे उससे ज्यादा ही आएंगे फेलियर की केस में। अगर आपका माइंड 6.5 का होगा कि मैंने 6 बैंड लेने हैं, तो फिर प्रोबेबिलिटी बनती है 5.5 बैंड की भी। ये ज़हन में रखिएगा। स्मार्ट अप्रोच जो सी है उसको हम लोग यूज करेंगे। दूसरी जो सी चीज है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसमें काफी चीजें हैं, लेकिन एक लाइफ साइकिल की बात की गई है कि जिसमें बताया गया कि आपके जिंदगी के 3 4 5 हिस्से हैं जिसमें आपने बैलेंस करना है। एवरी वन ऑफ अस, वन इज एकेडमिक लाइफ। आपकी एजुकेशन जो सी है वो वर्टिकल जा रही है, हॉरिजॉन्टल जा रही है। आपकी आप कितनी बुक्स पढ़ रहे हैं, नॉलेज गेन कितना कर रहे हैं, ये आपकी वो एक चीज़ है। सेकंड चीज़ है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है। थर्ड आपकी हेल्थ है। खासतौर पे जो 40s में आ जाए वो हेल्थ को टॉप के ऊपर ले आए। अगर आपकी हेल्थ वीक होगी, आप इतने प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे, इतने एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, तो उसके लिए फिर आपको कुछ ना कुछ वाइटामिन, कुछ इस किस्म की सप्लीमेंट्स और कुछ एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी ताकि आपका माइंड जो है वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करे। ठीक है, मैजिक ऑफ तो इसमें वो सर्कल की बात करते हैं, लाइफ साइकिल की। इसको देखिएगा, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल, बेसिकली नेपोलियन हिल की बुक है। इसी किताब में से द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग और बाकी और बुक्स निकली हैं। तो बेसिकली इन बुक्स का मकसद ये है कि वट एवर यू थिंक, अब वो हासिल कर लेते हैं। और अगर आप, मैं कई लोगों को ऐसा मिला हूँ जो बिल्कुल मीडियोकर फैमिली से, मीडियोकर माइंड्स होते हैं और मीडियोकर फैमिलीज। मीडियोकर माइंड इन व्हाट सेंस के बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, नॉर्मल होता है उनका माइंड, लेकिन मेहनती होते हैं। उसके बाद फैमिलीज भी ये होती हैं कि आम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, यूएसए चले जाते हैं। तो जब मेरा एमफिल का रिसर्च मैंने फाइनल की थी आइल्स में, तो फिर वो एक हमारे उस्ताद थे जिन्होंने मेरा डिफेंस लिया था, डॉक्टर मुबशिर। वो कहते हैं, याज मैं ना यतीम खाने में पढ़ा हूँ और पूरी दुनिया घूमा हूँ, और बगैर मैं किसी 1 रुपया मैंने जेब से नहीं लगाया। तो एक यतीम खाने में यतीम बच्चे ही पढ़ा होगा ना, आम बच्चे तो नहीं यतीम खाने के स्कूलों में पढ़ते। अब उस बंदे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो सारी दुनिया घूम के, यूएस से, कहता अब नाम लो मुल्क का, मैं बताऊंगा मैं उधर गया हूँ। तो व्हाट दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग। और इसी तरीके से कई और लोग हैं जो जा चुके हैं। थोड़ा सा आप इस चीज को प्लान करें। एटॉमिक हैबिट्स जो सी है ना, ये किताब बताती है कि किस तरीके से कंसिस्टेंसी जो सी है वो आपकी लाइफ को चेंज कर देती है। सो आइल्स में भी ये बहुत परसिवेरेंस और कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज्यादा, ये तमाम तर स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे 8.5 9 और 8 बैंड्स लिए, उन सब में ये कॉमन पर्सनालिटी ट्रेट था कि दे वर कंसिस्टेंट। आपने ये नहीं देखना कि आपका आज कितना अच्छा हुआ, जो एक्टिविटीज आपने आज प्लान की हैं वो आपने कर ली हैं, अगर कर ली हैं तो ये ठीक है, उसकी क्वालिटी आगे बढ़ जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता उसको देखिएगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी दैट यू गेट कमांड एंड you will get on right with the passage of time, रीडिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में। लेकिन आज अगर आपने प्लान किया था एक पैसेज पढ़ने का, तो आज उसमें छुट्टी तो नहीं कर ली आपने, कल तो नहीं कर ली। दिस इज व्हाट यू नीड टू। तो इनको हम लोग साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। आगे चलते हैं जी। अब हमने प्लान कैसे करना आइल्स की प्रिपरेशन को, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इफ यू नीड 8777 बैंड और हम 1000 स्टूडेंट्स का सैंपल साइज लेते हैं, ठीक है जी, उसमें से 990 जो स्टूडेंट्स हैं, ये चलें 950 स्टूडेंट्स कर लें, वो फेल होते हैं राइटिंग मॉड्यूल में 7 ना ले सकने की वजह से। दे गेट
बैंड इन ऑल रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स। स्पीकिंग में भी ले जाते हैं, लिस्टिंग में दे गेट 8 बैंड। कहा जाए तो लिस्टिंग में बैंड रिक्वायरमेंट ज्यादा है 8 की, बट दे स्कोर 8 बैंड। in most cases they lack राइटिंग मॉड्यूल में 8 बैंड क्या 7.5 7 भी नहीं आता, और बात करके स्टूडेंट्स 8 अटेम्प्ट्स कर लेते हैं, 10 अटेम्प्ट्स कर लेते हैं, और उसके बाद भी उनके 6.5 से ज्यादा स्कोर नहीं बढ़ते। तो राइटिंग जो सा है मेरे हिसाब से मोस्ट चैलेंजिंग मॉड्यूल है उस बंदे के लिए जिसने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, जिसने बाहर के मुल्क में कनाडा जाना है। तो राइटिंग को ज़हन में रखें, ये आपको टफ टाइम देगी। इट डजंट मीन दैट यू राइट समथिंग एंड देन यू कैन स्कोर वेल और उसके बाद फिर बाकी नहीं नहीं, अगर राइटिंग में आपके 7.5 आ गए 8 आ गए तो फिर तो बाकी मॉड्यूल्स में आ ही जाएंगे, उसकी आप टेंशन ना लें, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपने जहन में रखना है राइटिंग मॉड्यूल को। राइटिंग जो सी है दिस इज मोस्ट चैलेंजिंग मॉड्यूल। अच्छा जी, तो राइटिंग में अब हम क्या करेंगे। राइटिंग में एक ट्राइंगल मैं बार बार स्टूडेंट से डिस्कस करता हूँ कि realistically speaking you need to work on 3 different areas। ट्राइंगल के स्टार्ट में टॉप के ऊपर है फाउंडेशन। फाउंडेशन हमारे स्टूडेंट्स की वीक होती है। फाउंडेशन में क्या चीजें आती है मैं बताता हूँ। नीचे आती है जी टिप्स एंड टेक्निक्स। सबसे एंड में यू हैव फाउंडेशन प्रैक्टिस। चलें जी, व्हाट इज फाउंडेशन। अच्छा, थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट रिसर्च में था खुद से ज्यादा। मुझे आई गॉट इंस्पिरेशन व्हेन आई वाज डूइंग आइल्स पे मेरी रिसर्च थी, और आइल्स पे मुझे थोड़ा सा रिसर्च कैसे चल होती है और ये वो सारी चीजें। फाउंडेशन हमें कैसे पता लगता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं, जब हमारे पास डेटा आता है, कोई 1000 स्टूडेंट्स का डेटा आता है, कोई 400-500 स्टूडेंट्स का डेटा आता है, तो फिर हमें पता लगता है कि कौन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। नूर, आप मुझसे पूछ रही हैं कि व्हाट आर माय डिजायरमेंट्स, तो आपकी डिजायर है तो आप बताएंगी, मैं आपकी डिजायर कैसे बताऊं। हम्म? अच्छा, रिक्वायर्ड लिखना था आपने। आपके रिक्वायर्ड आप 8,777 से कम नहीं लेंगी। 8,777 8 लिस्टिंग रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग कम से कम इतने आने चाहिए। एमफिल किया हुआ आपने इंग्लिश में, तो फिर आपके 8 9 ईच आने चाहिए, 8.5 ईच आने चाहिए। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट बॉटम लाइन पे रिक्वायरमेंट पूछ रही है तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट है 8,777। फाउंडेशन में मैंने जब डिस्कोर्स एनालिसिस किया और स्टूडेंट्स की राइटिंग को देखा, पढ़ा, आइल्स की देखा, तो मैंने देखा कि वो स्मॉल सेंटेंसेस लिखते हैं मोस्ट स्टूडेंट्स। अगर लॉन्ग लिखा भी तो एक आधा एंड बट वगैरह बीच में डाल दिया उसके बाद। और यहाँ पे लॉन्ग सेंटेंसेस हमें चाहिए। जब स्टूडेंट्स लॉन्ग सेंटेंसेस लिखते हैं तो फिर वो लॉन्ग सेंटेंसेस विदाउट पंक्चुएशन कहलाते हैं रन ऑन सेंटेंसेस। तो पंक्चुएशन की मिस्टेक करते हैं पूरा पाकिस्तान, इल्ला माशाल्लाह इक्का दुक्का स्टूडेंट्स के अलावा ज्यादातर जो उनसे पंक्चुएशन के अंदर इश्यूज आ रहे थे। अच्छा चलें, अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन बाद में करते हैं। अब मैं थोड़ा से इसको एंड कर रहा हूँ डिस्कशन को, फिर आपसे पूछता हूँ जो आप पूछना चाह रहे हैं। अच्छा जी, रन ऑन सेंटेंसेस कहलाते हैं, ये पंक्चुएशन का इशू आ जाता है। इसके बाद हमारी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा पुअर है। उसके अलावा हमें आर्टिकल्स का इशू होता है जिसमें हम ए एन और दा की बात करते हैं। और हमारे स्टीरियोटाइप सेंटेंसेस यानी पाकिस्तानी जो वे ऑफ राइटिंग है ना,
उसको अगर हम रखें आपके आंसर को किसी इंटरनेशनल राइटर के सामने तो वो कहीं पे स्टैंड नहीं कर रहा था। अब मास्टर डिग्री है तो आपकी एक इंटरनेशनल जो राइटर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली, उन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली आपकी राइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के अलावा ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो लैक कर रहे होते हैं इन एरियाज के अंदर। वोकैबुलरी का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसके अलावा ये कि कुछ को सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर इशू आ रहा होता है। किसी को ये नहीं पता कि फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग में लिखना क्या है। ठीक है ना। और उसके अलावा आइल्स के अंदर डाइवर्सिटी मांगते हैं राइटिंग में डाइवर्सिटी मींस के जैसे हमारे वोकैबुलरी के वर्ड्स रिपीट ना हो, इसी तरीके से आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर भी रिपीट ना हो। ये सारी चीजें आपकी फाउंडेशन में जो जो चीज खराब है आपको उसे इम्प्रूव करना है। और सबसे ज्यादा हमारा टाइम जो लगता है वो वोकैबुलरी के ऊपर लगता है, बाकी चीजें हो जाती हैं जल्दी। वोकैबुलरी को अगर हम फर्दर देखें तो इसमें फिर आगे कई चीजें आ जाती हैं। अनकॉमन वर्ड्स भी वोकैबुलरी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना। कोलोकेशन इश्यूज को खत्म करना आपने, ये भी वोकैबुलरी के अंदर आ जाती है। प्रिसाइज और कंसाइज मीनिंग आपने डेवलप करना है, ये भी वोकैबुलरी के अंदर आ जाता है। ठीक है ना। और वोकैबुलरी के अंदर इडियोमैटिकल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं जब आप स्पीकिंग की बात करते हैं। idiomatic way of conversation जो हैं they demand especially in the speaking module, right? तो ये भी सारी फाउंडेशन के अंदर चीजें आ जाती हैं। आपको इन चीजों में काम करना पड़ेगा, खासतौर पे वो एरिया जिसमें आप लैक करते हैं। और वो कोई दूसरा बंदा ही बताएगा, कोई टीचर बताएगा, कोई एक्सपर्ट बताएगा। खुद से हमें कभी भी अपनी राइटिंग में गलती नजर नहीं आती। नहीं आती तो तभी लिखते हैं ना, हम समझते हैं ठीक है। अच्छा जी, प्रैक्टिस से मुतल्लिक जो सी है दैट इज बेसिकली योर टाइम बाउंड परफॉर्मेंस। टाइम बाउंड परफॉर्मेंस में ये है कि शुरू में तो हम लोग जब लिखते हैं तो ओपन टाइम हम कहते हैं जी आप 40 में से 40 ठीक करें, बेशक टाइम आपके पास खुला है, वट एवर you need 1 hour 2 hours, you can take your time, but you have to complete it in the uh, you have to correct 37 38 39 और 40 आंसर्स रीडिंग के अंदर। इसी तरीके से राइटिंग में भी आप ओपन टाइम ले लें लेकिन लिखें बगैर गलतियों के। ये फर्स्ट स्टेज होती है। आखिर में आपको टाइम बाउंड करनी पड़ती है, स्पीड इंक्रीज करनी पड़ती है जो आपकी प्रैक्टिस के साथ होती है। आपकी एनालिटिकल स्किल्स जो हैं वो बढ़ती हैं जब आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना। उसकी रीजन ये होती है कि जितना ज्यादा व्हेन यू गेट एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस तो माइंड आपकी जो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग है वो उस पर वर्क कर रही होती है जिस पे आपने इम्प्रूव करना होता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के अंदर ये 3 4 चीजें जो चाहिए वो रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स थे वो ना मिस्टेक उसकी निकाल दिया करते थे। यानी कि वो रेगुलर क्लासेस ले रहे थे और बता रहे थे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये कर लेते। सलीम साहब आपका माइक ऑन हो गया था, बाकी स्टूडेंट भी ना जरा माइक अपना ऑफ रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद जो तीसरी आपकी स्किल है दैट इज योर टिप्स एंड टेक्निक्स। ये हमारा काम है जो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने स्कोर ज्यादा लेना है। लेकिन इसके बगैर भी स्कोर नहीं बढ़ता। जैसे 300 other participants they are writing, they are attempting the paper, if the same techniques you will use then it is difficult and it is nearly impossible that you can convince the examiner regarding your band score that you deserve 8 or 9 or 8.5 band. You need to perform, you need to do something different, something more convincing, something smart that will convince the examiner that you deserve 8.5 or 9 band, which is different from other students, other participants as well. तो इस तरह का कुछ आपको करना पड़ेगा तो फिर ही आप स्कोर कर सकेंगे। तो टिप्स और टेक्निक्स कौन सी हैं, ये हमारा अपना R&D वाला चल रही होती है हमारी टीचर्स की। और वो देखते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को, क्योंकि इतनी जल्दी स्टूडेंट्स के माइंड में वो चीज़ें नहीं आती, आ भी जाती हैं कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट्स हों तो फिर। अच्छा जी, सो दिस इज व्हाट, ये जो ट्रायंगल थी, यू नीड टू वर्क ऑन दीज 3 एरियाज। अगर आप कहीं फाउंडेशन पे नहीं काम करना, गलत प्रैक्टिस करते जाए फायदा ही कोई नहीं।
टिप्स और टेक्निक्स जो सी यूज करें लेकिन आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स निकलती आ रही हैं तो फिर भी कोई फायदा नहीं। अगर आप फाउंडेशन पे कायम कर लें और टिप्स और टेक्निक्स को यूज ना करें तो आपका ऑर्डिनरी वे में होगा, 6.5 तक बैंड्स आ जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे अच्छा लिखने के बावजूद। तो टिप्स और टेक्निक्स को यूज करेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजों का आपको आइडिया जरूर होना शुरू हो जाएगा कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, लेकिन उसको लिख नहीं पाएंगे। ब्लूम्स टेक्सोनोमी के मुताबिक जो लर्निंग की थर्ड लेयर है उस पर आप नहीं काम कर पाएंगे। that is application. You cannot speak, you cannot write. Even, I mean, despite the fact that you have some understanding, but you cannot perform well. Application layer पे issue आ रही है, तो उसको भी आपने improve करना है। उसके लिए क्या होगा, राइटिंग में सबसे पहले स्टेप 1 हम फॉर्मेट्स करवाएंगे आपको। स्टेप 2 ग्रामर होगी आपकी। स्टेप 3 एक्सटेंसिव प्रैक्टिस होगी। कोर्स वर्क हमारा तकरीबन नेक्स्ट मंथ के सेशन स्टार्ट होने तक हो जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें आप लोग डिस्कस करेंगे। एक दफ़ा कंप्लीट हो जाता है तो फिर सेकंड मंथ आपने दोबारा सिर्फ ज़्यादा फोकस आपका प्रैक्टिस पे हो जाएगा और आप ज़्यादा काम करेंगे। तो ये तो राइटिंग के अंदर है। इसके अंदर तकरीबन आफ्टर 1 वीक यू विल स्टार्ट राइटिंग एटलीस्ट 1 essay डेली बेसिस, ठीक है ना। एवरी डे यू विल राइट डाउन 1 essay। तो उसके बाद यू विल इसी तरह टास्क 1 भी आप लिखेंगे। आज मैंने आप लोगों के साथ वो टास्क 1 शेयर कर दिए थे, लेट हो गया बट इस वक्त आपकी क्लास में मौजूद है, उसको देख लीजिएगा। और तमाम तो स्टूडेंट्स को एक दफ़ा निकाल दिया जाएगा क्लासरूम्स में से, दोबारा फिर आपके साथ कोड्स। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पेपर दे चुके हैं लेकिन वो क्लासरूम के अंदर ही मौजूद है, अभी निकाला नहीं हमने, ठीक है ना। तो जब सेशन एंड होता है तो फिर हम एक दफ़ा स्टूडेंट्स को रिमूव करते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगा कोड्स वगैरह, ठीक है। 12 अभी सारे स्टूडेंट्स क्लास के अंदर ही हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारी रीडिंग आ जाती है। रीडिंग में 1 पैसेज एवरी डे, ये मैं खुद करवाऊंगा। इसमें टेक्निक्स बताऊंगा, रीडिंग करनी कैसे है, लॉन्ग सेंटेंसेस क्या है, सपोर्टिव सेंटेंसेस क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, ट्रांजिशंस क्या है, वोकैबुलरी में लिस्ट ऑफ हेडिंग को कैसे अटेम्प्ट करना है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को कैसे करना है। वो डेली हम शुरू में 20-30 मिनट्स लेते हैं, वो मैं डेली बेसिस पे आपको कराऊंगा। जो मैं करवा रहा हूँ शुरू में आपने वो करते जाना है, उसके बाद आफ्टर 7 डेज एक पैसेज मैं करवाऊंगा, एक आप खुद करेंगे, ठीक है ना। तो आपने इस तरीके से करते जाना है। एकेडमिक रीडिंग करेंगे और जब आपका वोकैबुलरी बैंक बढ़ जाएगा, अगर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो फिर 3-3 पैसेजेस आप करना शुरू हो जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो सी होगी टाइम बाउंड, कि आपने टाइम बाउंड अटेम्प्ट करना है। लेकिन अगर आपके 23 ठीक हो रहे हैं तो अब टाइम, और आपको चाहिए 7 बैंड, 7 बैंड में आपको 32-33 चाहिए बेसिकली। अगर आप जीटी की बात करें यू नीड 34/40, एकेडमिक की बात कर रहे हैं तो 30/40। so this is what you need, I mean this is the score you need। तो what you will do, अब आप ये करेंगे कि पहले अपने स्कोर्स बढ़ाएं, टाइम को छोड़ दें। अभी पहले आपके ओपन टाइम में खुला टाइम ले लें, 1 घंटे के बजाय 2 ले लें, लेकिन 40 में से आपके 40, 39, 38 तक ठीक हो। डिक्शनरी देखना चाह रहे हैं देख लें, आपके एनालिटिकल स्किल्स बढ़े, आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में डिफरेंट टेस्ट आइटम्स को कैसे डिजाइन किया जाता है और कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। एक वक्त आएगा कि यू विल गेट 36, 37, 38, 35 पे 8 बैंड एकेडमिक रीडिंग में स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अब आपके 37, 38 आ रहे हैं, तो नाउ सेकंड थिंग इज स्पीड रीडिंग। अब आपको वो टेक्निक्स यूज करनी है कि टाइम बाउंड आप अटेम्प्ट करें, और जो अनफेमिलियर टॉपिक्स हैं उसमें यू नीड टू गेट मोर एक्सपोजर। फॉर एग्जांपल आप हैं फिजिकल साइंसेस के, लेकिन लाइफ साइंसेस से मुतल्लिक, मेडिसिन से मुतल्लिक, कोई डीएनए से मुतल्लिक, कोई डिफरेंट जो इकोलॉजी है चीज़ों की उनसे मुतल्लिक कोई डिफरेंट किस्म के पैसेजेस आ जाते हैं। यू नीड टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग इन दोज एरियाज एज वेल, कि आपका बैकग्राउंड बढ़े और उसके बाद आप कंफर्टेबल हो उसके अंदर भी, ठीक है। तो ये हम करेंगे। लिसनिंग में आई विल शेयर
मेरा 7 to 8 लेक्चर्स मौजूद हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके अलावा ये है कि हम कुछ ना कुछ वीक में एक दफ़ा डिस्कस करेंगे, एक दिन रख लेंगे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे वाला दिन, जिस दिन में उन लेक्चर्स के अलावा डिफरेंट चीज़ों को हम लोग लिसनिंग से मुतल्लिक जो हैं वो डिस्कस करते रहेंगे। तो इसी तरह दिस इज हाउ वी मूव ऑन। स्पीकिंग में आप डेली बेसिस पे मिस फरखंदा है आपकी क्लास ले रही हैं, पिछले 5-7 साल से मेरे साथ ही पढ़ा रही हैं, और शी इज़ एक्सपर्ट इन टीचिंग। ख़ासतौर पे जब बैंड्स निकलवाने की बात करें और तैयारी की बात करवाएं, जिस तरह पुराने टीचर्स बार बार रिपीट करवा के आप उनको फॉलो करते जाएं, इंशाल्लाह ताला यू विल सी दैट यू विल इम्प्रूव। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ आपको, टीचर्स की मिसाल ना ऐसे है जैसे किसी ने रोशनी दिखानी है, किसी ने हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई है, जिसे कहते हैं टॉर्च बेरर। लीडरशिप उनके पास है, उन्होंने बताना कि ये रास्ता है। हिम्मत आप लोगों की खुद की है। मैंने एमए इंग्लिश तक पढ़ा तो दैट वाज, आई मीन द टीचिंग मेथोडोलॉजीज वाज इंटायरली डिफरेंट। टीचर्स ने नोट्स बना देने, किताबें बता देनी, और डिफरेंट किस्म के खुलासे खलूसे होते थे, कोई इस तरह की चीजें होती थी, नोट्स होते थे, हम लोग उस पर करते थे काम। एमफिल में आए तो वहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आ गई। वहाँ पे कहा जाता था ये प्रोजेक्ट है, इसको करें आप, और उसके बाद उस सिस्टम के अंदर उस प्रोजेक्ट को अकॉम्प्लिश करने में जो लर्निंग होगी दैट इज वैल्यूएबल। रिसोर्स हमें दिया जाता था, रिसर्च पेपर्स दिए जाते थे, बट द आई मीन मेथोडोलॉजी वाज एंटायरली डिफरेंट। तो वहां पे हमने ये देखा कि जो नॉलेज, जो सब्जेक्ट आपके पास है या जिस पे आप काम कर रहे हैं, उसके ऊपर नॉलेज किसी दूसरे बंदे के पास है ही नहीं। आपने अकेले नहीं एक्सपोज करना है। हाँ, लोग थोड़ा थोड़ा आपको, जिन्होंने उस तरह का काम किया हुआ, मदद करेंगे, हल्का हल्का सा हेल्प करेंगे, लेकिन दैट वुड बी, यू कैन से दैट 20 to 30% और मैक्सिमम 40% इन आर्ट्स परस्पेक्टिव। 70% आपने खुद से जान लगानी है। अभी फाकिहा, उसने शी गॉट 8777 रिसेंटली, तो मुझे बता रही थी कि सर आई स्पेंड 6 hours एवरी डे। 5-6 दफा वो पहले फेल भी हो चुकी थी। अभी फरीहा 5-6 दफा उसने भी टेस्ट दिया, उसके बाद स्कोर लिए। सेम स्टोरी, ही वाज टेलिंग मी कि सर मैंने बड़ी सख्त मेहनत की, और वो शी वाज रिजिलियंट इन अ वे दैट एक दफा दो दफा बंदा फेल हो जाए, अल्लाह ना करे, तो वो लोग भाग जाते। मेरे पास नहीं फेल हुए, पहले से ही कहीं से तैयारियां वगैरह करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहली दूसरी अटेम्प्ट में हमारे पास स्टूडेंट निकल जाता है, मोस्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, तो बाज का कोई एग्जाम प्रेशर आ गया तो वो निकल जाते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तीसरी चीज स्पीकिंग मैंने आपको बताई कि वो मैडम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो वेबसाइट में आपके साथ कोड्स शेयर कर दूंगा मैं, ये हमारी वेबसाइट है। एक हम आपको एड ऑन मिलेगा, एक्स्ट्रा पीरियड होगा हमारा 6 to 6:30, दैट इज वी शैल वर्क ऑन वोकेबलरी। आपका दिल करे वो ले लीजिएगा, कहीं बिजी हैं तो रहने दीजिएगा। इस दफा मेरी कोशिश होगी कि वोकेबलरी के जितने सेशंस हैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाए। राइटिंग के जितने भी सेशंस होंगे उनकी रिकॉर्डिंग, रीडिंग और राइटिंग की आपको मिलेगी। और कल से इंशाल्लाह ताला 6 to 6:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम में के हिसाब से मैं आपका राइटिंग की क्लास, वोकेबलरी की क्लास लूंगा। आज भी हुई है वोकेबलरी की क्लास, ठीक है। थोड़ी सी चेंज आएगी यहाँ पे, लिसनिंग जो सी है सिर्फ और सिर्फ वेंसडे को होगी, और बाकी आपके साथ लेक्चर शेयर किए जाएंगे। बाकी सारी चीजें जो सी है ना वो लाइव। वोकेबलरी मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे वोकेबलरी चलेगी। स्पीकिंग 7 to 8 है, और रीडिंग और राइटिंग जो सा 8 to 9:30 जो सा वो मैं सेशन लिया करूंगा आपके। सो दिस इज हाउ वी मूव ऑन। हाँ जी, अब अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो यू मे आस्क प्लीज। जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज सेशन? जी फारूक साहब, कोई है आपके माइंड में सवाल वाला? नहीं सर, ऐसा कोई ऐसा सवाल नहीं है, कोई होगा तो डेफिनेटली मैं आपसे जरूर पूछूंगा। ठीक है जी, ठीक है। जी शहरोज। नहीं सर, everything was pretty crisp and clear. So ठीक, आपकी बैंड क्या शहरोज? इमिग्रेशन के लिए? सर मेरी इमिग्रेशन के लिए। चलें ठीक है। अच्छा जी, चलें ठीक है। और यहाँ पे कोई और मुझसे पूछ रही थी, क्या नाम है, नूर। नूर क्या पूछ रही थी? सर मैं यही पूछ रही थी क्या मैं ले सकती हूँ इतने बैंड? कभी कभी तो मैं बिल्कुल डिसहार्ट हो जाती, लेकिन फिर मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ, नहीं कर लूंगी कर लूंगी।
नूर माइक ऑफ करो। अच्छा, जहां तक बात है ना ले सकने वाला, वो तो आप ले सकती हैं, लेकिन दूसरा ये है कि उसकी फीस पे कर सकती हैं। फीस पैसों की मद में नहीं होती, फीस आपका फैमिली टाइम भी लगा। जब मैं एमफिल कर रहा था, आइल्स पे रिसर्च कर रहा था, मुझे बड़े लोगों ने रोका कि आइल्स वैसे ही नहीं होता, तो आप आइल्स पे रिसर्च आपने शुरू कर दी। बाहर टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैंने फिर उसकी फीस पे की। फीस कैसे पे की कि फैमिली में जब आता था यूनिवर्सिटी से, शाम को 7 बजे होते थे, तो मैं अपनी बीवी बच्चों के पास नहीं जाता था। ऊपर होते थे, मैं नीचे ड्राइंग रूम में बैठ जाता था, और बाज का होता था, थका हुआ था सारे दिन में, तो 2 घंटे सो के तो फिर रात सा ही पड़ता था। 3 दिन बाद फिर मैं नहीं होगा। बहरहाल ये बातें बताने वाली नहीं होती, हर बंदे का एक अपना होता है। अगर आप मेहनत करेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ती जाएंगी। आप मेहनत करेंगी, आपका बैकग्राउंड नॉलेज बढ़ता जाएगा। आप मेहनत करेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो एबिलिटीज जो कि आप फील करती हैं कि आपके अंदर अभी जहाँ पे आप लैक कर रही हैं, वो बढ़ती जाएंगी। और दूसरा ये कि कुछ भी कर सकता है बंदा, कुछ भी। ये तो ऐसी बात नहीं है, वो अल्लाह ने बनाया ही इंसान को ऐसा है कि अल्लाह ताला ने वो कमा मतलब अशरफुल मखलूकात बनाया है, और इंसान को ताकत दी है, सुपरमेसी दी है बाकी चीज़ों पे। ये जो चीज़ें ना, वो एक हाथी के बारे में है कि छोटा सा होता है तो उसके ना, उसकी टांग को ना दरख्त के साथ बांध दिया जाता है। अब वो उसी तरह रोज रात को बांध देते हैं, वो सुबह सारा दिन फिरता रहता है। वो एक दफा दो दफा छुड़ाने की कोशिश करता है, नहीं छुड़वा पाता। रस्सी जरा वजनी होती है, बड़ी होती है। उसके बाद वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो चाहे तो दरख्त उखाड़ दे। हाथी दरख्त तोड़ देते हैं, लेकिन ये कि वो रस्सी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो उसके माइंड में इंट्यूशन हो जाती है कि यू कैन नॉट डू दैट। बचपन से पता लग गया, एक दो दफा उसने कोशिश की, तब पता लगा कि वो रस्सी जो बारीक सी, एक झटका लगाए तो टूट जाती है, उसी तरह वो रस्सी बांध दी जाती है, और वो रस्सी को तोड़ ही नहीं सकता। ये ही हाल हमारा होता है कि हमारी सोसाइटी में, या हमारे जो माजी के जो तजर्बात हैं या फेलियर्स हैं, वो हमें हमारे माइंड की इंट्यूशन इस तरह कर देते हैं कि यू कैन नॉट डू दैट। तो वो रस्सी तोड़नी है आपने, अगर तोड़ ली तो फिर आप कर जाएंगी जो दिल चाहे, और अगर ना तोड़ी तो फिर इसी तरीके से आप लड़की रहेंगी। तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ बच्चों के साथ, इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट, बट देयर आर सो, आई मीन, लोड्स ऑफ फीमेल्स हु अचीव्ड गुड ग्रेड्स, अच्छे से अच्छे बैंड्स आए हुए हैं उनके, और ज्यादातर तो खवातीन के ही आए हुए हैं। मर्द तो बस पीछे पीछे ही होते हैं, यानी कि 9 खातून फीमेल स्टूडेंट्स और एक मेल स्टूडेंट, ये हमारे पास एवरेज आ रही है। यानी कि 8777 बैंड्स की जो उनसी है ना, कि अक्सर बीच में भाग जाते हैं, कोई काम नहीं करता, कोई उस तरह वो कमिटेड नहीं होते। अल्लाह ने कुछ बनाया भी इस तरह हुआ है। मर्द जो उनसे वो बाहर के काम करते हैं, जाते हैं, जोर आजमाने वाले फिजिकल काम करते हैं सारा दिन बेचारे। लेकिन खवातीन में ना, आप छोटे छोटे मिसाल के तौर पे वो आपको कहा जाए चावलों में से वो निकालें कोई चीजें, वो पत्थर निकालें, मैं तो नहीं निकाल सकता। मुझे तो 1 किलो दे दो, मुझे वक्त पड़ जाएगा, मैं उठ के भागूंगा वहां से। लेकिन जो मेरी वाइफ है वो निकाल लेगी। उसको जब 5 किलो भी दे दें, वो चुप करके वो टिक 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 लगी रहेगी, वक्त गुजरता जाएगा, लेकिन उठेगी नहीं। ये जो बर्दाश्त है ना, ये हम इन मर्दों में कम है, खवातीन में ये ज्यादा है। इस ये आइल्स में चाहिए कि कंसिस्टेंसी के साथ, अब रीडिंग आपको ना बता देती है, आपका दिल करता है उठ के भाग दें, छोड़ दें, बंद कर दें। तो जो लोग लगे रहते हैं तो वो कामयाब हो जाते हैं। तुम्हारा मर्द हो या औरत हो, जो भी उस रास्ते पे चलेगा और उसकी फी पे कर देगा फैमिली लाइफ टाइम के सेक्रीफाइस करने में, और बाकी चीज़ों में, और रिसोर्स को आगे खुद से बढ़ के देखेंगे, डिस्कशंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। आपसे एक्सपेक्टेशन इसलिए ज़्यादा है कि आप एमफिल हैं, एमफिल इंग्लिश लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स जो भी है। तो इस वजह से अब उन लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है, ना तो वो मिस्टेक कोई करते हैं, ना कुछ ऐसा होता है। अब उसमें एबिलिटी अगर नहीं बनी, व्हाट्सोएवर द रीजन वाज, यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं थी, फलां था फलां था फलां था, वो छोड़ दें। 2021 में, ठीक है, 6 दिसंबर 2021 के बाद आपसे पूछा जाएगा कि अब तो आपको ऑटोनोमस मिल गई ना, अब आपने खुद क्या किया अपने लिए।
ठीक है, खुद अपने लिए आपने 2022 के एंड तक आप कहाँ तक अपने आप को ग्रो किया, दिस इज इट मैटर्स मोर। जो आपकी किस्मत में था वो पास तो गुजर गया, उसे तो चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर तो आपके पास है। इस तरह ना क्या करें, जो चाहें आप, इवन ये कि बड़े बड़े चीजें सोचें वो भी कर सकती हैं। आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकती हैं, इस तरह सोचा करें। 9 ईच ले सकती हैं, आइल्स के टेस्ट को पाकिस्तान में रन कर सकती हैं, पूरे सिस्टम को डेवलप कर सकती हैं, हेड कर सकती हैं, कंट्री मैनेजर बन सकती हैं। ये ना सोचा करें कि आपके 777 आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तो बहुत छोटी चीज है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके चलो।